have with us Mr. Farooq. He's currently working in Chang'an. He has a wonderful experience dealing with people and revolving around people. And that's essentially the most important skill that I think we need to learn. Today, the discussion would be revolving around self identity, finding yourself. Like हर बंदा आके बता रहा था ये करो वो करो, but no one tells you how to actually figure out कि आपको क्या करना है, who actually you are as a person. So for that, Sir Farooq would start with an introduction and explain to you कि उनकी journey में कैसे गया, क्या क्या. Assalamu alaikum everyone. So I was thinking about this talk when I was coming towards IBA, and I thought that this should not be a routine career talk where I should be giving you some career tips and tricks. It should be something more deeper than that. And when we had initial discussion, I told Hamad that I'll be discussing something which is very personal to me, something that I experienced and which changed my life as well. So I'll be sharing that experience with you. So initial 15 minutes will be broken down into 3 parts. In the first part, I will give you a brief overview of what self-image is, because we will be talking a lot about self-image in today's discussion. Second part, I'll be sharing with you 2 stories, and just to drive the point home and just to tell you how self-image can really have an impact on how your life will work out. And as the third part, I'll be sharing with you a brief overview of the process of changing, amending, questioning your self-image. This will be a very brief overview because this in itself is a huge topic. So starting with what self-image is. Self-image is basically what we think we are. In the simplest term, this is the way we look at ourselves. And self-image, how is it developed? It is developed from childhood. जब हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारी इन्वायरमेंट हमें फीडबैक देती है, तो हम उसको एज ए सजेशन ले रहे होते हैं, राइट. एंड हिप्नोटिज्म में क्या होता है? हिप्नोसिस एग्जैक्टली वर्क लाइक दैट. जो हिप्नोटिस्ट होता है, दे गिव यू अ सजेशन इन द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड यू एक्ट ऑन दैट. सो बचपन से व्हाट हैपन्स इज दैट आवर एनवायरनमेंट, आवर पेरेंट्स, आवर स्कूल्स, आवर टीचर्स, they are hypnotizing us. They are giving us an identity which we believe in 100% accuracy, and we believe that this is what we are. Or subconscious level pe when you have an identity or self image, you take it as truth. अच्छा, अब ठीक है, ये हो गया. क्वेश्चन ये होता है कि फिर so what, right? क्या इम्पैक्ट होता है? अच्छा, दिस इज़ वेरी वेरी, एक राइटर है, उसका नाम है मैक्सवेल मॉल्ट्स. ही वॉज क्या कहते हैं उसको, ही वॉज बेसिकली वो नहीं होते जो प्लास्टिक सर्जन. ही वॉज अ प्लास्टिक सर्जन, एंड वॉट ही ऑब्जर्व वॉज वेरी स्ट्रेंज थिंग. इन सर्टन पीपल, व्हेन ही रिमूव्ड सम disfigurement in their face, their self image changed and they behaved totally differently and they became more confident. But in certain people, when he removed a certain issue with the features, nothing changed. And he started studying psychology after that, and he came up with the concept of self-image. And he told that if the self-image is not changed with the change in the physical feature, it will not translate into another improvement in the behavior or the personality type. Right? तो self-image किस तरह काम करता है? Self-image इस तरह काम करता है कि आपके सबकॉन्शियस में आपका एक इमेज चला जाता है, एंड दैट बिकम्स अ बाउंड्री फॉर यू. यू विल ऑलवेज ऑपरेट इन दैट बाउंड्री, बिकॉज आइडेंटिटी साइकोलॉजी की टर्म में इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. योर सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क टू मेक श्योर कि जो आपका सेल्फ इमेज है आप उससे बियॉन्ड ना जाएं. इट विल प्रोटेक्ट दैट. और फिर वो क्या होगा, आप अपनी इन्वायरमेंट से जो सिग्नल्स लेंगे, अपने इन्वायरमेंट को जिस लेंस से देखेंगे, आप उसे सेल्फ इमेज के लेंस से देखेंगे. For example, if someone believes that he is not good with numbers, the subconscious mind or self-image will make sure that whenever there is a mathematical question comes, that person is not able to perform, because performing on that question will be against their self-image. So self-image plays a very critical role, and it basically sets the boundaries under which we operate. Right? अब
इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, और ये डेवलप कैसे होता है, सजेशंस बचपन से हम जो सुन रहे होते हैं, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। और उसको चेंज करने का प्रोसेस जो है, इट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। इट इज़ नॉट लाइक कि जिस तरह वो पॉजिटिव टॉक अगर हम सुनते हैं ना लिंक्डइन पे भी और दूसरी जगहों पे भी, एक मोटिवेशनल कोट्स कि आप थिंक डिफरेंट एंड यू विल बिकम डिफरेंट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वील डिस्कस कि इसको कैसे किया जाता है, बट सेल्फ इमेज इज़ बेसिकली व्हाट वी थिंक वी आर। सेकेंड पॉइंट इज़ that what we believe we are, we behave in those boundaries. We will not break that identity at a subconscious level, and we will not be able to cross that image what we have set for ourselves. अच्छा, अब story. There was a 13 years old boy, and his teacher asked him to bring his parents to the school, right? When next day the parents came, the teacher told to the parents that your son is not capable of learning science or mathematics. He has serious lack of aptitude, and if you want him to do anything better in life, you should change the courses from science to arts. The problem was that in that school, arts subjects were not offered. Then the boy, that he continued studying in the science subjects. Matriculation का एग्ज़ाम दिया, उसमें एवरेज किस्म का स्कोर आया, बड़ी मुश्किल से पास हुए। एंड देन इंटरमीडिएट, अगेन सेम इंजीनियरिंग, सेम मैथमेटिक्स, सेम साइंस, अगेन पास्ड द कोर्सेज with just borderline score. Then after that, the student, he started studying in the university, and up till third semester he was performing very poorly in the quantitative subjects. And in the third semester, what happened was that there was a course in finance, and the paper came in the exam, in the test, which was not taught in the classroom, and the concept was weighted average cost of capital, right? So we had to calculate net present value, and net present value के लिए you have to calculate weighted average cost of capital. That concept was not told. It was just told कि company is getting capital from 3-4 different sources at this rate, and you have to calculate NPV. And that boy, what he did was he calculated somehow based on logic a weighted average cost of capital and solved the problem. And he was the only person in the class who solved that, riddle in a way. And the teacher asked, how did you solve it? And he said, this is just common sense. And the teacher said that you have a good aptitude in mathematics or numbers. So this was the first time that his self-image started to crack, and he started questioning that self-image. So what he did was he started noticing that he did not find it very difficult to understand concepts in finance or statistics or any number courses. And evidence started building up. He started working hard on that subject. He started comparing his notes with other people. And then evidence started building up, and he developed that confidence that he did majors in finance. He developed so much skill in statistics that he went on to develop some statistical models for the companies. So he did a lot of number oriented things, and he still is known as someone who has good number skills. And that person is standing in front of you. So I've been through this journey, and when I studied that, I learned that self-image is very, very critical. So another story, have you heard of Wilma Rudolph? Wilma Rudolph का किसी ने नाम सुना? Wilma Rudolph was a black girl. When she was born, she had polio, and up till the age of 9, she was on crutches. And doctor told her that you will not be able to walk ever in your life. And she went on to become the fastest woman on earth. So when she was asked that, how did you do that? She said that my doctor told me that I could not walk. My mother told me that I can, and I believed my mother. So that is the power of self-image. It really, really defines
what we achieve in our lives. So now the question is that यार हम कर सकते हैं ना सेल्फ इमेज को, आज मैं चेंज कर लूँ, मैं कहूँ, मैं सोचूँ मैं सुपरमैन हूँ, कल से मैं सुपरमैन बन जाऊँगा, राइट? It could be one fiction versus other fiction. So answer is not that simple. Self image is not, it is easy to understand, but it is not easy to work on. How do you think, कोई बता सकता है कैसे हुआ होगा, कैसे सेल्फ इमेज चेंज होता होगा, क्या प्रोसेस होगा, कोई आइडिया? हाँ हाँ, क्या करते होंगे माइंड में, फर्स्ट स्टेप क्या होता होगा? आपको अपने जो दिमाग में जो चैलेंजेस या चीज़ें जो आप समझते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, वो आप चैलेंज करना शुरू करते होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बाउंड्रीज को मतलब एक्सटेंड करते होंगे, तो तभी आप इस सेल्फ इमेज को चैलेंज। आई थिंक राइट थॉट प्रोसेस, यस। आई थिंक आई वुड एग्री विद हिम। आई थिंक ग्रेजुअली होता है और इंक्रीमेंटली होता है। जैसे आपने कोलैब कहा था कि आपने आपको एक टीचर ने तारीफ की तो आपको वो पुराना सेल्फ इमेज जो था वो टूटा है। हाँ। तो ऐसा ऐसा फिर आपने जैसे आपको माइंड में एक चेंज है, फिर आपने वो प्रैक्टिस किया एंड इट एक्चुअली चेंज। तो पहले दिमाग में चेंज आता है, फिर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आते हैं, और फिर आपको सेल्फ इमेज पूरी तरह बदल सकती है। गुड पॉइंट। और positive self talk, yes, to some extent, but again positive self talk is just one small part of that. Acha, this is broken down into 3-4 small steps. Number 1 is identification. We have to identify कि हमारा सेल्फ इमेज है क्या, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अच्छा, at times it is useful that you take an angle of your life. For example, as a student आप कैसे हैं, as an employee कैसे हैं, as a father कैसे हैं, as a brother कैसे हैं, right? आप उस एंगल को देखते हैं, then you try to understand कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को अंडरस्टैंड करना होता है और अपने सेल्फ इमेज को लर्न करना पड़ता है। Once you have identified that, then you identify what needs to be changed. अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैथमेटिक्स एकदम ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हो गया। प्रॉब्लम ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सिलेक्टिव एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। वो एविडेंस कलेक्ट करता है जो आपके इमेज से अलाइंड होती है, जो आपके इमेज से अलाइंड नहीं होती वो आप देख भी नहीं सकते, राइट? तो होता ये है कि एविडेंस होता है कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट एविडेंस। तो आप क्या करते हैं, आप अपना इमेज आइडेंटिफाई करते हैं, आप यू ट्राई टू रियली सी थ्रू योर लाइफ कि कहाँ पे आपका काउंटर एविडेंस को नज़र आता है, और आपको नज़र आते हैं काउंटर एविडेंस। देन यू विजुलाइज, सेकंड स्टेप ये होता है विजुलाइज कि आप कैसे फ्यूचर में बिहेव करना चाहते हैं इस एस्पेक्ट को लेके। यू विजुलाइज, विजुलाइजेशन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। इन फैक्ट इट इज़ प्रूवन कि वो एथलीट्स जो विजुलाइज करते हैं दे परफॉर्म बेटर देन दोज एथलीट्स विच डू नॉट डू विजुलाइजेशन। इन फैक्ट ओलंपिक्स में ये इट वॉज स्टडीड, और ये स्टडी किया गया था, उसके बाद से एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी। विजुलाइजेशन जो है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इंसानी माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन विजुलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस। सो फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जिस तरह आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस एंड देन यू एक्ट ऑन दैट। चांसेस आर व्हेन यू एक्ट यू गेट पॉजिटिव एविडेंस, एंड ओवर द पीरियड दैट एविडेंस, जिस तरह आप बात कर रहे थे, एविडेंस बिल्ड होता रहता है एंड इट चेंजेस योर सेल्फ इमेज, राइट? सो इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी, राइट? तो ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करूँगा, करियर को अगर हम लेके चलते हैं तो स्टार्ट विद योर सेल्फ इमेज। स्टार्ट, हाउ डू यू सी योर सेल्फ एज ए स्टूडेंट, हाउ डू यू वांट टू सी योर सेल्फ एज एन एम्प्लॉई। आपने इंटर्नशिप की थी, कैसा बिहेव किया था, किसको आप रोल मॉडल करना चाह रहे हैं, अभी वो इमेज क्या है। करियर को लेके आपका इमेज क्या बनता है, आप किस तरह के एम्प्लॉई बनना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम देयर। आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीव्स। एट टाइम्स हमारी ज़िंदगी में रोल मॉडल्स नहीं होते, एट टाइम्स होते हैं, एंड फ्रॉम देयर ऑन वर्क ऑन एवरीथिंग, बिकॉज सेल्फ इमेज को चेंज करने से ही आपकी लॉन्ग लास्टिंग चेंज आएगी। अदरवाइज आप जो भी आपका सेल्फ इमेज कैरी करेंगे इसके ऊपर स्किल्स बिल्ड कर लेंगे, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट। सो दैट इज़ माई मैसेज, दैट इट इज़ रियली वर्थ वाइल to work on the self-image. It is a long tiring process, but it really pays off. Yeah. Thank you. So, I think एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिससे हम सब रियली रिलेट कर सकते हैं।
ग्रोइंग अप आई फील कि हमारे साथ हमेशा से ऐसा होता रहा है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि आपने क्या करना है, ना कि Yes. आपको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती है कि आपने किस तरह चीज़ों को लेके जाना है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉक. Thank you. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन के a lot of times because of this जो हमारी एक सेल्फ इमेज होती है ना, यूजुअली हमारी अपनी नहीं होती. ये चीज़ें बोरो की जा रही होती हैं, द एनवायरनमेंट वी हैव फ्रॉम आवर फैमिली, और ये आपके ऊपर ब्रॉट डाउन किए जा रहे होते हैं. सो टू यू व्हाट डू यू थिंक, कौन सा आपकी ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि जो आपकी सेल्फ इमेज है दैट इज़ नॉट रियली योर्स एंड शुड बी चेंज, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया? अच्छा, एक तो मैंने स्टोरी शेयर की, Yeah. अगेन एक इमेज क्रिएट किया गया Hmm. या हो गया जिसमें मैं आई वाज नॉट गुड इन फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, राइट. लेकिन एक और जो मेरे एक तो दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट. इनफैक्ट दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे आई यूज्ड टू लुक माई सेल्फ एंड लुक एट माई सेल्फ एंड द वर्क द वे आई वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स. इसके अलावा जो एक मेजर इवेंट हुआ वो ये हुआ कि फिज़िकली जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं ना, इट ऑल्सो इज़ पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज. और ये रिसर्च भी ये कहती है कि अगर कोई ओवरवेट है और वज़न कम करना चाह रहा है और वो अपने आप को विजुलाइज नहीं कर सकता उसके कम वेट के साथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन बिकॉज सेल्फ दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, राइट. सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन ऑफ द वेट प्रॉब्लम. वेट मेरा ज़्यादा था और वो सारी चीज़ें. So what I did was I started working on this, starting this changing the self image, starting to look at in a different perspective. मैंने ये भी देखा कि मैं अच्छा होऊंगा तो कैसा लगूँ. ज़माने में AI नहीं था, वरना AI का image create कर लेता, right? Yes. And then when I had that image in mind, it was easier for me. Still not that 100% effortless. It was still effort, but it was easier for me to then reduce weight. तो यूजुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम कुछ कर रहे होते हैं हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या वो एक डिस्कम्फर्ट है. हर काम में कोई ना कोई थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट ज़रूर होती है. एसेंशियली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कम्फर्ट एंड मिसअलाइनमेंट. Yes. तो हाउ डज वन रियलाइज कि आप जो काम कर रहे हो, आर यू एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट डिस्कम्फर्ट जो आपको बिल्ड कर रहा है, और रादर इज अ मिसअलाइनमेंट विद व्हाट यू आर डूइंग? हाउ डू यू कनेक्ट दैट? Okay, that is a different question, right? एक discomfort, this is not related to self-image Yeah. per se, right? So the question is that if someone is going through a discomfort, is this misalignment or actual discomfort which a person should go through? या अच्छा, देखें, दो चीज़ें इसमें मेरे ख्याल में रोल प्ले करती हैं. एक, डिस्कम्फर्ट अगर ऐसी है जो आपकी वैल्यूज़ से मिसअलाइंड है. वैल्यूज़ की डेफिनेशन क्या है? वैल्यूज़ आर समथिंग विच वी ट्रूली बिलीव and we do not want to give up under any circumstances, right? Briefly अगर हम बात करें, अगर आपकी वैल्यूज से मिसअलाइनमेंट है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस डिस्कम्फर्ट से गुजर के कोई बड़ा काम कर सकें. और इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट जिसको आपको अर्ली आइडेंटिफाई करके आपको उससे उस सिचुएशन से अपने आप को एग्जिट कर देना चाहिए अगर वैल्यूज़ की मिसअलाइनमेंट है. अगर वो लर्निंग की मिसअलाइनमेंट है कि लर्निंग कम है, आपको टाइम लग रहा है, एफर्ट हो रही है, स्किल बिल्डिंग में टाइम लग रहा है, दैट इज़ अ गुड टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट एंड दैट यू शुड वर्क अपॉन. क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप करना चाहेंगे, हमेशा वो चीज़ जो आप जिसमें आप बाद में एंजॉय करेंगे, पहले वो मुश्किल होगी, पहले उसमें एफर्ट लगानी पड़ेगी, पहले वो बोरिंग होगी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी. ओनली देन यू विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आप जाके उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे. सो वैल्यूज मिसअलाइनमेंट इज़ द ओनली रेड फ्लैग दैट आई थिंक should be looked at. Be looked at. Perfect. So you've been in HR dealing with people from probably 25 years plus. So essentially वो लोग जो कहीं stuck हो जाते हैं, what have you seen the difference in their image, उनकी identities, उनकी qualities में? जो स्टक हो जाते हैं उनके उसमें, सॉरी प्लीज़ रिपीट. Essentially like वो लोग हाँ. जो मतलब कहीं पे stuck रह जाते हैं, they're stuck in a career, यानी जैसे आइडेंटिटी पे भी ना देयर ऑलवेज बीइंग इम्पोज्ड ऑन कि मैं बीबीए में क्यों बैठा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वो एक मिसअलाइन, एक वो उनके अंदर स्टकनेस आ जाती है, बैठ जाते हैं कि एम आई हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. हाउ डज वन फिगर आउट कि यहाँ से कैसे निकलना है, और एम आई. अच्छा, करियर में ना मैंने बहुत लोग देखे जो कहीं स्टक हो जाते हैं और वो करियर में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे होते. अच्छा, और जब आप ग्रो नहीं करते तो आपको कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर मिलता है कि दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर नॉट ग्रोइंग. अब 2-3 कैटेगरीज में लोग फॉल करते हैं. एक वो लोग होते हैं जो उस फीडबैक को एक्सेप्ट ही नहीं करते. वो कहते हैं मुझे फीडबैक तो ये मिल रहा है
बट देर इज़ सम एक्स फैक्टर, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से मैं आगे ग्रो नहीं कर रहा, कोई बायसनेस है, कोई वो चीज़, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि दे विल नेवर एक्सेप्ट इट, एनवायरनमेंट बार बार फीडबैक देगा एंड दे विल स्टक इन द सेम रट फॉर एवर। एंड आई हैव सीन दिस पीपल स्पेंडिंग, मेरा एक कॉलीग था, he was working for a company and he was not getting promoted. He tried to get the feedback from the manager, and manager gave the feedback which we knew as a colleague, okay, this is the right feedback, this is a major roadblock in his way forward, but he did not accept it. He left the company, he went to another company and on a better job, and that was reinforced कि यार ये गलत कह रहे थे, ठीक है। अब एक और बेहतर जॉब पे चला गया because he had good brand name on his CV, एक और जॉब में चला गया, same issue, he left that company again, came back to Pakistan, he was out of the country, again same, and now he has left the job for last many years and he's doing something of his own, but the same behavior is dragging him and he's not able to perform his business. So these are the category of people जो कभी accept नहीं करेंगे। Second category पे होती है जो कुछ हद तक accept करते हैं, they try to do something, बट दे क्योंकि सेल्फ इमेज पे काम नहीं करते, अपने आप को वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। मैंने फील किया कि यस थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आती है, बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। थर्ड कैटेगरी होती है जो हु पीपल आर ट्रूली रीडिफाइन देमसेल्व्स, और ऐसे लोगों को अमूमन हेल्प चाहिए होती है। अगर इफ़ यू हैव टू ट्रूली रीडिफाइन योर सेल्फ, यू नीड सम कोचिंग, सम गाइडेंस, समवन टू टेल यू कि यार ये तुम्हारे अंदर मसला है, इसको तुमने ऐसे ठीक करना है, अच्छा तुम अब ये स्टेप लो, एंड दैट समवन शुड बी हु दे रिस्पेक्ट। तो मैंने एक और मेरी टीम में एक साहब थे, ही वाज हैड लॉट ऑफ इश्यूज, एंड देन व्हेन आई टॉक टू हिम ही सीम टू बी ओपन टू लर्निंग, एंड द कोचिंग रियली हेल्प्ड इन दैट। So these people, I have seen people who truly transformed themselves. People were unable to even recognize the way they speak and talk and because they went through a transformation. Essentially, हम काफ़ी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अब आ चुके हैं IB स्टूडेंट्स। एक डिलेमा काफ़ी ज़्यादा है कि हमें लगता है वी शुड हैव फिगर्ड इट आउट बाय नाउ। हमेशा फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ पे ये इंटर्नशिप नहीं लगी, यहाँ पे ये नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर आवरसेल्व्स विद एवरीवन, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारी सेल्फ इमेज भी इम्पैक्ट हो रही है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस एंड हाउ शुड वन रियली नो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ऑल्दो ये कहना आसान है, बट जिस एज में आप लोग हो उस एज में मुश्किल हो जाता है। वो ये है कि हम आउटकम देख के ये डिसाइड ना करें कि हमारा जो इनपुट था वो ठीक था कि नहीं था, राइट? स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो तो आप थोड़ा सा बिलो एवरेज किस्म का शेयर भी फेयर वैल्यू से ऊपर ले लेंगे, तो वो परफॉर्म कर जाएगा, राइट? और स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो, एक अच्छा शेयर भी जो अंडर परफॉर्म करेगा, आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने उसको टाइमिंग गलत होगी। तो आउटकम को देख के अगर आप अपने इनपुट्स और अपनी एफर्ट और आप उसको वैल्यूएट करेंगे ना, तो दैट यू आर ऑन द मर्सी ऑफ लक, फ्रेंकली। अच्छा, किस चीज़ के अगेंस्ट एवैल्यूएट करना चाहिए? एवैल्यूएट करना चाहिए कि देखें आप नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज बनती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। क्या मेरा नॉलेज का लेवल वो है जो मैं इस लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ? क्या मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल या जो अभी मुझे आप बता रहे थे, जो भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या नॉलेज, स्किल, बिहेवियर चाहिए? आप अपने आप को वहाँ उन स्किल्स के, नॉलेज, स्किल, बिहेवियर के अगेंस्ट कहाँ वैल्यूएट करते हैं? वहाँ पे कहाँ गैप्स हैं, उसमें बी वेरी ब्रूटल विद योर सेल्फ। आस्क अदर पीपल अबाउट द ओपिनियन कि अच्छा यहाँ पे मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे कहाँ हूँ, एंड वर्क ऑन दोज एंड मेजर अगेंस्ट दोज इनपुट्स कि वेदर यू आर on the right track or not. Don't measure yourself against the outcome. क्योंकि आउटकम पे जब हम मेजर करते हैं हमें लगता है, हम डिसअपॉइंट क्यों होते हैं, हमें लगता है कि एक्शन कुछ हम कर नहीं सकते, वी फील स्लाइटली हेल्पलेस। लेकिन अगर आप इनपुट्स पे काम करेंगे, चांसेस आर, कंसिडरिंग योर एज एंड द रनवे दैट यू हैव, eventually it will, you will get there. Essentially मेरी सर आज़म से भी ये डिस्कशन हो रही थी एंड आपसे भी थोड़ी सी हुई थी कि यहाँ पे a lot of people have just one door and one direction in mind. That is कि हमें एक मल्टीनेशनल में पहुँचना है, किसी भी तरह से कुछ भी करके एक MNC में पहुँचना है, and really you see this mindset everywhere. So, because of that, I do think कि काफ़ी हद तक आप एक जब entrepreneurial spirit की तरफ जा रहे होते हैं ना, you learn a lot, you make mistakes, you go through a journey, जो कि लोग कहीं बार रेडी नहीं होते, and काफ़ी हद तक इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिकॉज हमारी इमेज ही ऐसे बिल्ट हो रही होती है थ्रू आउट आवर कल्चर कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, एंड दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक बंदा जो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, हाउ कैन वन
battle these images and go on? ओके देखिए हम पेयर कंपैरिजन तो करते हैं Yeah. और हम कंपेयर करते हैं, हमें लगता है कि स्पेशली एट दिस एज हमें लग रहा होता है कि कोई PNG में चला गया, यूनिलीवर में चला गया, मुझे कोई और कुछ काम करना पड़ा, वी कंपेयर एंड वी थिंक वी आर अ फेलियर। अब और अगर आप डिफरेंट पाथ्स को लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, वो बहुत डिफरेंट तरह की लाइफस्टाइल है, इट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, राइट। अच्छा देखें पहला स्टेप तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अगर आपको डिफरेंट पाथ है, अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव द बिग पिक्चर, ज़रा सा मसला आएगा, आप उस पाथ को छोड़ेंगे और किसी और तरफ निकल जाएंगे। तो एक तो कंसिडरेट डिसीजन होना चाहिए कि क्या है। अच्छा बात थोड़ी सी मुझे लगता है फिलोसॉफिकल या थ्योरेटिकल लगेगी, बट दिस मेक्स अ डिफरेंस, विच इज़ व्हाट इज़ विजन ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, करियर इज़ पार्ट ऑफ दैट। कौन सा करियर उसमें रोल प्ले कर सकता है, कैसे रोल प्ले करेगा। दीज आर फाउंडेशनल क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। अदरवाइज क्योंकि अगर आपका एक विजन होगा तो आपके लिए डिसीजन क्राइटेरिया वो विजन बन जाएगा, ना कि ये कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपका कोई विजन नहीं होगा, कोई अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, तो आपके लिए क्राइटेरिया क्या बनेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर आप सही डायरेक्शन पे रहना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये कि अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर सेट करें, अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें। अगर वो क्लियर होंगे तो इट विल कीप यू एंकर्ड ऑन योर पाथ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सेकंड पॉइंट ये, अपने जैसे लोगों में उठे बैठे, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो एक नेटवर्क ज़रूर आप आइडेंटिफाई करें, बिकॉज दैट नेटवर्क विल हेल्प यू। एंड पाकिस्तान में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अभी मैं एक वो KSBL में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो जो AI के एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, एटम कैंप के नाम से एक उसके साहब में उनके साथ वो था हमारा सेशन, एंड ही इज़ बिल्डिंग दैट नेटवर्क, जहाँ पे अगर आप AI एंटरप्रेन्योरियल कोई वेंचर करना चाह रहे हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद दोज पीपल। सो इस तरह का नेटवर्क ज़रूर ढूंढें और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, तो दैट विल हेल्प। हम डिज़ाइनर ज़िंदगी में एक्सरसाइज काफ़ी करते हैं कि वी ट्राई टू टेल पीपल कि आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बनाएं। तो वी वांट टू नो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, एंड ओवर द पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 20-25 ईयर्स आपने कैसे देखा कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस थ्रू आउट द पीरियड चेंज होती रही है। अच्छा देखिए मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अगर करियर के हिसाब से मैं बात करूँ, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ योर ओन टाइम फ्रॉम करियर्स परस्पेक्टिव, आई थिंक दिस इज़ आई एम सक्सेसफुल। एंड मास्टर ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि यू स्पेंड योर टाइम विद योर ओन फ्री विल। जो आप करना चाहें अगर आप वो कर रहे हैं, और तो दैट इज़ करियर सक्सेस। क्योंकि हम क्या करते हैं एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़, we are selling our time, and if we are selling our time and we are on the mercy of the organization that we are working for, and we are not spending time the way we want, we are basically slaves, right? तो true freedom मेरे ख्याल में ये है, if you can spend your time with your own free will, जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। तो मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही है, और इसीलिए मैंने अपनी जो पूरा करियर है वो ऐसे मैनेज किया था कि आप अगर किसी चीज़ में अच्छे हो तो कंपनी भी आपको लेवरेज ज़्यादा देती है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू। तो एक तो उस टाइम पे ये किया। सेकंड, आई प्लान्ड द वे दैट आई शुड बी रिटायरिंग बाय द एज ऑफ 50। It's an interesting plan. It's like थोड़ा सा हम BYZ में ओडेसी मैप्स हमेशा बनाते होते हैं। What is के when you're confused about what you want to do with one situation, उसमें 3 डिफरेंट प्लान्स आ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। वन प्लान इज़ कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यू आर इन एन IBA, तो आप आगे जाके अगले 5 साल यहीं से ग्रेजुएट करके एक काम कर रहे होंगे। द सेकेंड पैथ इज़ कि यू शिफ्ट, ये IBA इज़ नॉट एन ऑप्शन, यू फॉर सम रीजन यू कांट परस्यू IBA एनी मोर एंड यू आर गोइंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। एंड ए थर्ड डायरेक्शन इज़ कि जहाँ पे यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर रिसोर्सेज, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मनी, अब आप क्या करोगे। So these 3 situations की basis पे, तो if you were in this kind of a situation, what would you do then? If the current path अगर मेरा continue किया तो by the age of 50 I'll be retiring, and after that I have plans to work on things that I really want to work, and mostly on the basically I'll be working, but I'll not be working for money. So the current extension, because I'm already 46, 47, so 3-4 years are right across the corner, right? सेकेंड ये कि अगर आज ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाए और मुझे आज मैं इसी स्टेज पे खड़ा हूँ और दोबारा स्टार्ट करना पड़े, तो प्रॉबेबली व्हाट आई वुड डू इज़, एंड आई हैव टू मेक अ लिविंग, राइट, मैंने अपनी लाइफ गुजारनी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी वो एक सिचुएशन है,
और मेरा लाइफ का कोई विजन भी है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो आई वुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आई वुड डू इज़, जो भी मेरा एक्सपीरियंस और वो है, इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, और अब AI के साथ जो फ्रेंकली अब 1 person कैन डू 10% जॉब ईजीली, very easily. I've seen that, I've done that, and मुझे लगता है कि what I will do, I'll not work for anyone else, I'll do something of my own, and I'm very sure that in couple of years I'll be back on track. If I did not have limitation of resources, और time भी इसमें resource है, कोई रिसोर्सेज लिमिट नहीं है, whatever Limit you नहीं, तो want, what will I do? टाइम तो है ऑब्वियसली, बट उसके अलावा मनी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और कोई रिसोर्सेज का मसला नहीं, अब अनलिमिटेड नहीं है. तो what will I do? This is the question, right? Yeah. This is an interesting question, यार. I will probably, देखिए, I love teaching. Okay. मैं KSBL में पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके अलावा मैं पहले भी मुझे शौक़ है पढ़ाने का. Probably I'll start my own teaching. मुझे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है the way institutions are currently working, the way we are teaching people, especially the youngsters. बिल्कुल बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, हम creative thinking नहीं पढ़ाते, हम problem solving नहीं पढ़ाते, हम उन लोगों के अंदर वो self image की हम बात करें उसके ऊपर काम नहीं करते, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हमारे जो बच्चे आगे जाते हैं, आई थिंक दे आर नॉट अचीविंग देयर पोटेंशियल. सो प्रॉब्ली आई स्टार्ट अ स्कूल. आपने उसका नाम सुना होगा, वो जिसने नहीं, वो है पैरेलल थिंकिंग और लैटरल थिंकिंग, एडवर्ड डी बोनो. एडवर्ड डी बोनो का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाने का, और उनको किस तरह आप उनके अंदर पैरेलल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं. प्रॉब्ली आई स्टार्ट अ स्कूल ऑन दैट कॉन्सेप्ट, एंड आई स्टार्ट टीचिंग यंग किड्स जो बिल्कुल यंग एज के हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि वो ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देयर. द रियल रीज़न वी डू दिस ना कि थर्ड वाले पे यू डोंट हैव रिसोर्सेज की लिमिटेशन, तो आप सोचने पे मजबूर है कि आपने एक्चुअल में क्या करना है, कि अब मुझे कोई और टेंशन नहीं है घर के लिए, के लिए रिसोर्सेज की. तो कमिंग बैक टू द AI की एज, essentially over the past 20 years टेक्नोलॉजी की वजह से, हर चीज़ की वजह से थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी रैपिडली, और चीज़ें बहुत चेंज होती जा रही हैं. सो इन द हायरिंग इंडस्ट्री यू बीन विद पीपल, हाउ हैव यू सीन कि ओवर द 22 years चीज़ें कैसे चेंज होती रही हैं, और किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चेंजेस में ज़्यादातर सक्सेसफुल रहे हैं? ओके, द क्वेश्चन इज मिक्स्ड. हम AI के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, AI कॉन्टेक्स्ट, AI के AI कॉन्टेक्स्ट कैसे? अच्छा देखें, AI के उसमें आई वॉज़ लकी इनफ कि मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करता रहा जो AI पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं. अभी तो GPTs तो बाद में आए ना, LLMs और GPT, उससे पहले भी मशीन लर्निंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था, मॉडल्स वगैरह बन रहे थे. उस टाइम से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व रहा. मेरे ख्याल में ये दिस विल रेवोल्यूशनराइज द वे थिंग्स आर वर्किंग, टोटली चेंज हो जाएगा. जस्ट टू, अगर मुझे आज अपना डिपार्टमेंट रीसेट करना पड़े और मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो AI की करंट कैपेबिलिटी है, मैं फ्यूचर कैपेबिलिटी की भी बात भी नहीं कर रहा, आई थिंक वी डोंट नीड मिडल मैनेजर एंड बिलो स्टाफ. वी डोंट नीड दोज पीपल. वी डोंट नीड एनालिस्ट्स. वी डोंट नीड डेटा गैदरर्स. वी डोंट नीड पीपल हु आर जस्ट रनिंग द प्रोसेस ऑन द ERP. वी डोंट नीड पीपल. तो वी just need people who can design policies, who can define rules, and who can evaluate the outcomes. उनको success criteria पता हो, और who can be held accountable for the outcome. So problem ये है कि I think the uppermost layer they will stay because they are making policies, they are setting standards, they are setting the strategy of the company, and they are setting up the processes and stuff. उसके नीचे का जो काम है वो आज की जो अभी की कैपेबिलिटी है उसमें भी हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने अभी एक सर्वे किया, उस सर्वे में बहुत सारा डेटा है. वो डेटा अगर मैं किसी एनालिस्ट को दूंगा तो दैट एनालिस्ट विल टेक मे बी 10-15 days जस्ट टू एनालाइज एंड कम अप विद इनसाइट्स. वो डेटा आप चैट GPT, क्लॉड इसको दें और उसमें से वो इनसाइट्स वो आपको निकाल, जो ह्यूमन आई शायद देख भी नहीं सकते. आप उसको कॉम्प्रीहेंड करके करना क्या है वो एक नेक्स्ट स्टेप है. बट तो मुझे लगता है कि इट विल फंडामेंटली चेंज. अब जो चीज़ मुझे हैरान हुई, मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम हायरिंग कर रहे थे, नॉट इन चंगान, इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड कि बिजनेस स्कूल्स और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग AI.
उनको बेसिक चैट जीपीटी और वो यूज़, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेन जी आ रही है, बिल्कुल नए लोग होंगे, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो असेसमेंट सेंटर में प्रेजेंटेशन वगैरह देनी थी, बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत रिसर्च की होगी, बट वी वर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि पीपल आर नॉट यूजिंग दैट। सो आई थिंक जितनी जल्दी हो सके आप करें, दिस विल फंडामेंटली चेंज एवरीथिंग। एंट्री लेवल जॉब्स, मिडिल मैनेजमेंट जॉब्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये तो फैक्ट है। I was watching a podcast of Jensen Huang, जो कि NVIDIA के फाउंडर है। उन्होंने पूरी एक ये बाउंड्री सेट की है। उन्होंने एक बात काफ़ी कही थी कि टुडे स्टूडेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हाउ दे कैन यूज़ AI टू मेक देयर जॉब बेटर, अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये जो कि करना चाहिए। बट फाइनल क्वेश्चन उसके बाद विल बी ओपन फॉर द ऑडियंस टू आस्क एनीथिंग कि what right now would you recommend to all of us कि what should we start right now, कैसे हम अपने आप को ऐसे build कर सकते हैं कि maybe when we're going to be in the industry in the next 2 years we're ready for that, we're ready for any kind of change. आई थिंक 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान में थैंकफुली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लेट। AI में भी हम अभी वी आर जस्ट फिगरिंग आउट, स्ट्रगलिंग कि क्या करना है। जो लोग कंपनी में, मैंने देखा 2-3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो AI यूज़ कर रहे हैं, अपने लेवल पे करते हैं और वो अपने काम को स्मार्टली कर रहे हैं, बहुत फास्ट उसमें कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, एंड दे आर यूजिंग दिस, एंड आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग $200-300 आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट जस्ट टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लाउड एंड दीज थिंग्स। ये अपना काम इम्प्रूव कर रहे हैं और उनकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो पाकिस्तान में 2 साल के बाद से लोग हायर तो हो रहे होंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे होंगे वो, लेकिन डिफरेंशिएटर क्या होगा? डिफरेंशिएटर वो होगा कि अब बार ऊपर चला गया है, अब मेरी कंपनी में कोई आएगा तो आई वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि अब AI कैन असिस्ट यू इन दैट, कि उसको कंपनी के बारे में इनसाइड आउट पता हो, उसको अपनी फील्ड के बारे में उसे पता हो, वो मुझे ये बता सके कि जो काम मैं उसको देने जा रहा हूँ या जो काम उसे करना पड़ेगा उसमें वो AI को कैसे इंटीग्रेट करेगा, और उसका लर्निंग कर्व बहुत फास्ट हो। अब जो है वो लर्निंग कर्व का मार्जिन नहीं है कि हम सालों लगा दें उस चीज़ को करने के लिए। तो एक तो ये पहला काम है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि आप अपने तौर पे जब आप जाएं तो आप बार उसको सेट करें। सेकंड, अपने एरिया में आप देखें कटिंग एज क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में आजकल AI कैसे यूज़ हो रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, और उसमें अब तो टूल्स बनाना बहुत आसान है। अगर आपको हैंड्स ऑन टूल्स वगैरह बनाने आते हैं, देखिए आप जाके किनको रिपोर्ट करेंगे, मिलेनियल्स को, वो लोग इतने ज़्यादा टैक्स हैवी नहीं है, उन्होंने AI भी इस तरह वैल्यूएट नहीं। तो यंगस्टर जो ऐड कर रहे हैं ना वैल्यू हमारे पास भी आके, वो क्या कर रहे हैं, वो AI में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, वो चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं और वो स्टैंड आउट करते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं, आपको ये टूल्स टेक्निक्स पता है, चांसेस आर यू विल गेट हायर्ड बेटर। एंड नंबर 3 ये कि आप जो क्लैरिटी आपको चाहिए अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज अब कंपनीज जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ वापस जाने की तरफ था। जनरल मैनेजमेंट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, अब स्पेशलाइजेशन और डेप्थ मैटर कर रही है। अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सर्टन फील्ड है, फाइनेंस है या HR है, वट एवर, द लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड it is changing very fast. So you have to be AI driven, otherwise it will be very difficult to get a job. It was genuinely a very intriguing session. Thank you. So much for it, Farooq. We're open for any questions. अगर किसी का कोई भी सवाल है, please. Imran, please. Sir, I wanted to ask about self-image. आपने बात की कि self-image की environment की तरफ से feedback आ रहा है constant. So how do you draw a line between कि आपको कौन सा environmental feedback accept करना है और कौन सा accept नहीं? ओके देखिए, एनवायरनमेंट की तरफ से फीडबैक तो आपको आएगा, जो भी आप एक्शन करेंगे उसके ऊपर एक फ़ीडबैक आएगा, राइट। अच्छा, जो सेल्फ इमेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो बना है जब आप बहुत नेसेंट ईयर्स में थे, शुरू में, राइट। उस टाइम पे आपको एक फ़ीडबैक मिला और उस फीडबैक को आपने एज ए लिटरल फीडबैक लेके आपने अपना सेल्फ इमेज क्रिएट कर लिया, और वो सेल्फ इमेज अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो यू नीड टू चेंज दैट, राइट। दैट इज़ द थ्योरी, राइट। अब जब आप करने जाएंगे तो आपने फीडबैक जो एनवायरनमेंट से आपको मिलेगा, आपने यू जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस कि कौन, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार मैंने एज ए
मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे कि नंबर्स में मैं अच्छा नहीं हूँ और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू लुक फॉर एविडेंस जो आपके चेंज इमेज से अलाइंड है, उसको एक्टिवली आपने देखना है। आपने उस पर अच्छा होगा क्या, जब प्रोसेस पूरा आप करते हैं शुरू में आपको मिस हो सकता है, आप करने की कोशिश करें ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी कोई एविडेंस आएगा तो यू विल परफेक्ट दैट। ओवर द पीरियड आप दोबारा ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा और एविडेंस आएगा थोड़ा, तो यू जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि वो एविडेंस जो इमेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे अलाइंड होगा, उस पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उस एविडेंस पे बिल्ड करना है फर्दर। तो वो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो नेगेटिव है उसको वक्ती तौर पे इग्नोर करते चले जाना है। तो पॉजिटिव एविडेंस बिल्ड होता चला जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी स्किल भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आइए आप अभी छोड़ दें मेरे ख्याल में। हाँ, इस सेशन में अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो और वैसे मेरे ख्याल में माइक के बगैर हाँ, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सही आ रही है। किसी का कोई सवाल, एनीथिंग, कोई कंफ्यूजन अबाउट द सेशन और श्योर I had a question. So you mentioned the adoption of AI. So I'm interested in how Changan has included AI automation in their process. Like at what level has it been included? Since I mean, Claude का update आता है after 1 week and a whole job is redundant. So आपके किस level पे आप लोग AI automation या Claude का जो cowork है आप लोग किस तरह, how are you adopting it in your organization? अच्छा देखिए, जो AI की अडॉप्शन है ऑन द वर्क फ्लो लेवल, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा दैट you have and the clarity of your processes. If you have clear processes and systems available, number one, well-defined processes, and you have good data, the AI layer will magnify your output, right? So what we are doing right now is we are building baseline systems. We are building data lakes. We are implementing SAP Grow, which is the latest cloud SAP that we are implementing, and that has inbuilt AI layer in that. So foundational work needs to be done, where what we are doing, we are defining our processes very clearly. We are identifying variations in those processes, so that they can be automated through AI. We are improving our data. We are collecting that data which we were not collecting before, so that we can apply AI layer on that, and we can get insights which we are not getting right now. Just to give you an idea, for example, you have to calculate NPS. It was very difficult to calculate NPS. You had to hire AC Nielsen or company like that, and they will go in the market and they'll do the survey and they'll give you NPS score. Right now, if you go to Claude, give it a detailed prompt, it will go on the social media, it will gather all the comments on your products and forums and all that, and based on that it will give you a NPS score, right? So things are moving very fast, but the companies with clear defined processes and data will be ahead, and we are trying to do that. Yeah. Okay, follow-up question. So AI in the end it is in fact a tool, right? The people behind AI, they need to have logic, they need to have structured arguments in their mind, they need to have structured thinking and problem solving to be able to give an effective prompt to Claude to work on something. What do you think as students we need to equip ourselves with to actually give AI the proper information, the proper logic to build systems that last? Matlab, what do we need to improve in ourselves to actually be able to use AI effectively and keep ourselves competitive? I think this is a very good point. AI is scaling the effort, not the expertise, right? So जितनी अच्छी expertise आपकी है, जितना आप अच्छा input देंगे, उतना ही अच्छा output निकलेगा. एक सर्जन जो input देगा वो मैं और आप नहीं दे सकते, right? और उसको जो output मिलेगा वो मुझे और आपको नहीं मिलेगा, right? तो expertise की value बहुत ज़्यादा है. अच्छा, जो अच्छे लोग मैंने देखे हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अमूमन क्या, पाकिस्तानी स्पेशली, प्रॉम्प्ट पे टाइम नहीं लगाते, आउटपुट को देखना फ़ौरन शुरू होते हैं. हमारा होता है कि हम रिफ्लेक्स के हम फ़ौरन लिखें और देखें आउटकम क्या आ रहा है, राइट? प्रॉम्प्ट पे टाइम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मैंने देखे यंगस्टर्स वो क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें. एक तो यू कैन बिल्ड योर ओन नॉलेज, जो हमने बात की, स्पेशलिटी आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलिटी. सेकंड स्टेप इज़ कि इफ़ यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट, गो टू द एक्सपर्ट, टॉक टू देम, इसमें और क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ मॉडल फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, तो यू कैन प्रिंसिपल, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल यूज़ वॉरेन बुफे करता है. अच्छा, मैं इसमें जो है वो ऑडिटर, फॉर एग्जांपल, मैं एक उस पर काम करता था, मुझे किसी ने बताया कि यार पाकिस्तान में कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि ऑडिटर्स रिलायबल नहीं है, तो बुक्स आर नॉट रिलायबल. तो
उसमें प्रॉम्प्ट में उसने इनकॉर्पोरेट कराया कि तुम ऑडिटर को देखो और ऑडिटर की बेस पे भी स्कोर दो उस कंपनी को कि वो क्या है। तो एक्सपर्ट्स के साथ बात करना, उनसे चीज़ समझना, देन ट्रांसलेटिंग दैट इनटू अ प्रॉम्प्ट is an X factor right now. And youngsters, if they are open minded, if they try to do it themselves, this is not, it is AI क्या कर रहा है, आप 4-5-6 एक्सपर्ट से बात करें, उसको नोट डाउन करें, उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करें, then the output will be world class. So that is important. रिसर्च जितनी अच्छी होगी और आपकी एक्सपर्टीज जितनी होगी उतना ही अच्छा आप वो करेंगे। एंड स्पेंड प्रॉम्प्ट, बाय द वे, टाइम प्रॉम्प्ट लिखने में, टेक इट एज अ सीरियस, अपने जो काम रेगुलर करते हैं प्रॉम्प्ट लिखें, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं। अब आजकल वो क्लाउड में स्किल्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, स्किल्स को आप कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें बेस्ड ऑन न्यू लर्निंग्स, एंड दैट स्किल दैट यू हैव डेवलप्ड फॉर योरसेल्फ इन क्लाउड विल बिकम योर कंपैरेटिव एडवांटेज। हाँ, तो जो आपकी IBA में पढ़ाई हुई थी और जो आपका करियर में यानी शुरू का जो हिस्सा था मीडियम, और फिर आप तो रिटायर होने वाले सही बात है। तो IBA से आपको वैल्यू किस चीज़ में ज़्यादा मिली, और फिर किस चीज़ में आपने देखा कि अच्छा वो ओवर द करियर वो शायद इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, और जो लोगों को यहाँ पे इतना ओके, देखिए, नहीं करना चाहिए। GPA बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक तो ये मैंने चीज़ नोट की। रियल लर्निंग मैटर्स अ लॉट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, जो सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, GPA बहुत अच्छे नहीं थे, बट देयर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक वाज साउंड, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी GPA पे ऑपरेट नहीं करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर आउटपुट पे ऑपरेट करता है। दूसरा मैंने नोट किया कि जो स्किल बहुत मैटर करती है वो हार्ड वर्क, अप्रोच जो चीज़ की डेवलप होती है। कुछ लोगों की अप्रोच जो होती है ना वो बड़ी सिस्टमेटिक होती है इस चीज़ को करने की, और कुछ लोगों की अप्रोच बहुत हैफेज़र्ड होती है। मुझे लगता है कि अप्रोच एक जो डेवलप की जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक हाई लेवल पिक्चर को ब्रेक करना, स्टेप्स में देखना, एनालाइज करना, दिस थिंग्स रियली हेल्प्स। क्या चीज़ हेल्प नहीं करती? आपके ग्रेड, आपके GPA डजेंट मैटर, आपकी स्पेशलिटी डजेंट मैटर। हम एट टाइम्स, मैंने देखा, वो सेल्फ इमेज की बात कर रहे थे, हम 2 कोर्स मार्केटिंग में पढ़ते हैं और समझते हैं मार्केटिंग के अलावा हमने कुछ नहीं करना। मेरी टीम में खातून थी पिछली कंपनी में, शी वॉज ब्रिलियंट। उनको मैंने कहा कि आप रिक्रूटमेंट और ये चीज़ें में आप बहुत अच्छी हैं, यू शुड मूव इनटू दिस फंक्शन, यू इवन ग्रो इन द करियर। उसने कहा जी मैं तो जी आज से 12 साल पहले जो मैंने डिग्री की थी तो वो तो मैंने कम्युनिकेशन में की थी, मैं कम्युनिकेशन ही करूँगी। एंड शी स्टक इन हर करियर। तो स्पेशलिटी मैटर नहीं करती, नेटवर्क मैटर करता है। लोगों से आप मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो करते हैं, ये डिस्कशंस मैटर करती हैं। यही नेटवर्क जो अभी है 8 से 10 साल के बाद यही आपका वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाएगा। तो GPA पे, और एक चीज़ मैंने और देखी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि करियर स्टार्ट कहाँ से लोगों ने किए हैं। कुछ बहुत अच्छी जगहों से करते हैं, कुछ एवरेज जगहों से करते हैं, कुछ ब्लो एवरेज। ओवर द पीरियड जो आप, जैसे स्टॉक जो है अपने फंडामेंटल की तरफ आता है ना, जो आपकी फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि आप करियर में कितना ग्रो करेंगे। Another question. Since आपने भी IBA से पढ़ा हुआ है, I'd like to ask, do you think IBA का environment, the courses we teach, the way we teach, is it more conducive in producing corporate professionals rather than entrepreneurs? Because you don't see as many entrepreneurs coming out of IBA as compared to perhaps LUMS or other technical universities like FAST and GT. And what do you think IBA could change to actually bring forward more entrepreneurs, as those are the people who actually build stuff, and lasting companies are built from entrepreneurs, not people who work on those companies? I think this is a very good question, and I would take a very different position on that. I think this is not the responsibility of an institute to produce entrepreneurs. This is the responsibility of the society. हम लोग की जो सोसाइटी है, इट इज़ नॉट ईज फॉर डूइंग बिजनेस। क्या है, आज आप बिज़नेस ओपन करने जाएं तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स, FBR और ये चीज़ें। सेकंड, हमारे इतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर हाई होते हैं कि हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। ना हमारा इलाज गवर्नमेंट देती है, ना हमारी एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, ना हम सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है, पानी हमने खुद लेना होता है। मुझे लगता ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी पूरी इसको वो प्रमोट करती है। इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन को चेंज करके हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बिज़नेस स्कूल में आने से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से हल नहीं होगा। मेरे ख्याल में सोसाइटी को एज ए होल हमें देखना चाहिए, और उसमें हमें एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए। आप देखें अभी आजकल इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं,
वहाँ पे कुछ नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, people try to do that, but are we getting the funding, are we getting the hand holding that is required? Is government promoting that? Do you have availability of funds or loans from the banks? If that is not there, regardless of the education, people will not be able to do that. And then obviously on top of that, most of the discussions happening in these classrooms are around the corporate sector. Corporate में क्या हो रहा है, वही केस स्टडीज़ पढ़ाई जाएंगी, वही सब कुछ किया जाएगा. So I don't think institution can do anything unless until we change the broader picture and we bring in the focus on that entrepreneurial spirit. But don't you think by the institutions making a conscious effort, they can at least push students towards that side? Because generally, for example, IBA का एक general semester देखें, session कोई आ रही है, you're seeing people coming from HBL से लोग आ रहे हैं, Unilever से लोग आ रहे हैं, Nestle से आ रहे हैं. But like there's genuine people in Pakistan who are doing wonders. There's multi-million-dollar startups. True. Humble एक बहुत famous startup है. Bazaar Tech is a startup. They've raised millions of dollars, and these are people actually making changes out there और market को वो completely transform कर रहे हैं. But you don't see those people coming here. You don't see IBA calling them or actually a conversation आप करवाएं at least. I see that there is a gap, funding वाला gap. I'm interested in the VC space as well. So the main gap is the funding gap basically in Pakistan. But at least एक environment तो create किया जा सकता है ना where students का उस तरफ push तो करें, वो idea तो सोचें ना, वो उस तरफ जाएं. तो हम corporate से बाहर ही नहीं आते. We only think about going in an FMCG company, maybe landing in a good bank. और अगर बहुत ही मतलब काम पागल हो गए तो आप एक शायद McKinsey में चले जाओ, कंसल्टेंट. ऐसे ही उस तरफ तो आपका दिमाग जाता ही नहीं है कि आप उस तरफ जाओ. तो एक ट्रेडिशनल अगर आप IBA के एक स्टूडेंट से आप बात कर लें, यू कुड आस्क 100 स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन, आपने कहाँ जाना है, इट विल ऑलवेज बी ए कॉर्पोरेट बैंक, इट विल ऑलवेज बी एन FMCG. दे विल नेवर से कि यार ये प्रॉब्लम, देयर इज अ पेनफुल प्रॉब्लम इन द मार्केट दैट आई वांट टू सॉल्व. ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा. डोंट यू थिंक इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट इस बेसिक वाले प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है. आई थिंक ये एक चीज़ है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं. हम एटलीस्ट लोगों के माइंड में ये डालना शुरू करें कि दिस इज़ एन ऑप्शन एंड दिस इज़ अ वाइबल ऑप्शन. And then institution के level पे we can even create an environment, an incubation center probably, maybe aligning people, come बाहर से किसी VC fund को बुला लें, यहाँ पे लोगों की role modeling करें जो आप बात कर रहे हैं. Yes, we can nudge people towards that side, but till the time broader system align नहीं होगा, मुश्किल होगा. But yes, we can do that, and people are doing wonders. Yes, there are a lot of examples, even in the bigger companies, multi-million-dollar companies, which were started by the people like ourselves, right? So we can do that, but yes, that is an angle. I agree with this. Thank you.